Jai Dharima, we are live now. Jai Dharima to all of you. Mummy, Jai Dharima. Jai Dharima. Namaskar. Children, very, very, very welcome. Lots and lots of love. Thank you, ma'am. Lots of love. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. All our children got it. Lovely. All our children. Amazing children. Lots of love. This is all for you. Back And to Children all Day. for you. अच्छा, पहले आज के दिन के बारे में. It's a special day as a daughter for me. Today is my Abu's, my father's birthday. He's moved beyond. He is with Babaji. He's with Guru Nanak Ji, Guru Gobind Singh Ji. That's where he came from. It's his birthday today. So the program is Bridge Bedi Mentorship Program. My father was a great educator in every sense of the word. He loved to see children blossom, children flourish in every which way. He did all that he could just to bring joy. सबकी जिंदगियों में खूब रौनक लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए जो भी कर सकते थे उन्होंने करा. He gave his all. उनका दिन है आज and feeling very blessed. Mummy is here and Mohit has joined us. वो बच्चों को खूब प्यार करते हैं. वो अपने बारे में आपको खुद बताएंगे. बच्चों को खूब प्यार करते हैं और वो सिटी बुक लीडर्स की एक एंटरप्राइज को लीड करते हैं जिसकी विजन है टू इम्पार्ट नॉलेज थ्रू बुक्स. बुक्स में जो नॉलेज है वो पन्नों में ना रह जाए, वो आप सब तक पहुंचे. तो यही प्रयास है आप तक प्यारी प्यारी कहानियां पहुंचाने का, बातें पहुंचाने का, आपसे बात करने का. वो सारा हिडन नॉलेज धीरे 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 आप सबके साथ शेयर करना. सो दैट इज द डे टुडे. आज हम फ्लैग्स के बारे में जानेंगे. फ्लैग्स गिव आइडेंटिटी. दे आर अ सिंबल ऑफ अ कंट्री. That is what we are going to do, and then we will interact with you also. पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मम्मी बात करें, फिर हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे, and then the session goes to मोहित अंकल. हाँ जी. मम्मी. Thank you, Mohit, for joining us. How wonderful to see Mohit, the City Book Leader Group. And you see what a great constituency you have of children. Yes. These children have been with us for last more than a year now. Wow. Nutritioned, nourished, made more knowledgeable, inspired. So it's a great day of a person we are remembering with great respect and regard, who had love, as Saina says. He always wanted to see children educated, growing, progressing, developing. He was very ambitious about other children always. So it's in memory, and that's why we got children together who are also being inspired to grow and learn now more and more from all of us who can give. So Mohit, you are here. Who could be better than you to take us forward? And today you've chosen to talk about history of flags of the world, isn't it? I'm very curious to learn from you today. So please go ahead. Here are children before you who are all very, very, very motivated to learn more. And they're all very talented children, all of them. So please go ahead. Fantastic. Fantastic. Saina ji. अब वीडियोस दिखा देते हैं पहले बच्चों को, then all yours. वीडियोस दिखा देते हैं. सुमित दोनों वीडियोस चला दो बेटा. Both. Let them get the feel of it. दोनों वीडियोस. सुमित झंडा फहरा दो. Yes. So hoist the flag. Flag. And tell us the history. This is
in his name, Bridge Bedi Mentorship Program. Always mentoring. Oh, Now, small little video on Abu. Sumit, would you play that video? Do we have the second video? Yes. That's my father. Clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Happy birthday. happy birthday. Happy birthday, sir. You, Mohit, आपके पास ना. Over to you. Talk about yourself. Talk about the children. Whatever's coming to your heart. All yours. Fantastic. Thank you very much, Saina ji, and Namaskar, Dr. Kiran Bedi. It's an honor, I must say. I'm feeling too privileged today. लेकिन जो बच्चों को आपने बात कही ना कि मोहित अंकल अभी किताबों से चीजें बताएंगे, तो मैं उनका पहले भ्रम दूर कर देता हूँ कि जो किताबें आपको बहुत मुश्किल लगे पढ़ने में, मैं उन किताबों के बारे में आज बात नहीं करूंगा. मैं आपकी उन्हीं किताबों को थोड़ा मजेदार करके बात करूंगा. आप लोगों को बड़ा मजा आएगा उन किताबों को नए तरीके से देखने में, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं बहुत भागता था उन किताबों से, खासतौर पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी. मैं सोचता था कब ये पीरियड खत्म होगा, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ. लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे बाल थोड़े कम हुए और मेरी बेटी आपकी उम्र की हो गई, तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो बड़ी मजेदार चीज है यार, इसको और मजेदार तरीके से पढ़ते हैं. तो आज हम कुछ वैसे ही बात करेंगे. और आज ब्रिज सर के अलावा भी एक बहुत खास शख्सियत का जन्मदिन है, जिसको हम हर वक्त यूज करते हैं, हर थोड़ी देर बाद यूज करते हैं. बताओ किसका बर्थडे है आज? मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ किसका बर्थडे आज? कौन अपना 23वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कोई जिसके बिना आजकल तुम्हारा काम चलता ही नहीं है लाइफ में. कोई पबजी मत बोलना यार प्लीज. बताओ किसका बर्थडे है? गूगल कर लो. गूगल. यस. सो आद्यांश एब्सोल्युटली फाइन. आज यस गरिमा, आदित्य, नारिमा, आज गूगल का भी बर्थडे है. आज 23rd बर्थडे गूगल सेलिब्रेट कर रहा है अपना. और एक गूगल की वजह से शायद हमारी जो पहुंच थी बहुत बड़ी हो गई है. और मैं आज सर के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कैसे उन्होंने अपने कई और करियर्स को छोड़ के, जो कि हम सोचते हैं कि बड़े कन्वेंशनल हैं, कि he could have joined army, he could have been a model as well, he could have been a textile engineer, he could have pursued very well in corporate, but he took something very different, and that to a great service back in Amritsar. Very very inspiring. बहुत ही प्रोत्साहन मिला उनके बारे में पढ़ के मैम. और मैं इस बात के लिए बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि मैं आप दोनों के अलावा आपकी किताबों के थ्रू मैं आपकी पूरी फैमिली से तो मिला हूँ, लेकिन मैं आज सर से भी मिल पाया. और आज उनके इस जन्मदिन पे जो सेलिब्रेशन है, जो आज जो सम्मेलन हमने रखा है यहाँ पर, आज मैं कुछ ऐसी चीजें बता पाऊंगा जिससे जो उनका लक्ष्य था उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा. उससे पहले मैं एक पोल करना चाहता हूँ. बच्चे सारे ना चैट पे लिख सकते हैं कितने लोगों को हिंदी में ठीक लगेगा, या हिंदी प्लस इंग्लिश चलेगा, या सिर्फ इंग्लिश चलेगा. ये खटाखट मुझे बता दो. हिंदी अंग्रेजी या दोनों? हिंदी इंग्लिश और बोथ? हिंदी. वेरी गुड भाभी. हिंदी प्लस इंग्लिश, ओनली इंग्लिश. अच्छा. ओके. बोथ. तो ये देखो पोल कर रहे हैं हम, डेमोक्रेटिक रूल रखेंगे, दोनों चीजें देखेंगे, जिसका ज्यादा आ जाएगा हम वही वाला हिंदी इंग्लिश करते हैं, दोनों मिक्स करेंगे.
ठीक है, ज्यादा बोथ ही बोल रहे हैं। चलिए ग्रेट। सो वी विल स्टार्ट। हाँ सॉरी मैम, हाँ बोथ ही बोल रहे हैं, करेक्ट। तो हम वही करेंगे मैम, फिर हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसको इंग्लिश का इस्तेमाल करें और फ्लैग्स के साथ साथ झंडा या ध्वज भी बोले। और आज उसकी हम ऐसी कहानियां सुनेंगे, वी विल हियर सम स्टोरीज दैट आर वेरी अननोन, मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मेरी मदद थोड़ी बहुत तो गूगल ने करी, थोड़ी बहुत अमेजोन ने करी और बहुत सारी किताबों ने करी। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस वजह से हम आज यहाँ सब मिले हैं, उस शख्सियत का आज के हमारे सब्जेक्ट से क्या कॉम्बिनेशन है। आपको पता है, आप अपनी बर्थडे पे एक फ्लैग यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता है? बर्थडे पे कौन सा फ्लैग यूज किया जाता है? बताओ बताओ बताओ। अरे उसको बर्थडे फ्लैग बोलते हैं। ये जो तुम घर में झालर लगाते हो ना, झालर, उसको बर्थडे फ्लैग बोलते हैं। सो दैट्स हाउ द बर्थडे फ्लैग इज आल्सो यूज्ड एवरी डे ऑलमोस्ट। आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहां बर्थडे फ्लैग देखते हैं। तो आज के बाद से आप सारे झंडे, जो ध्वज, ये फ्लैग्स होते हैं, इनको नए तरीके से देखेंगे, जैसे मैं देखने लगा हूँ पिछले कुछ सालों से, जब से मैंने इस पे अध्ययन किया, जब से मैंने रिसर्च करना शुरू किया इस सब्जेक्ट पे। तो क्योंकि आज हम एक बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैंने आपसे इसलिए हिंदी इंग्लिश और दोनों पूछा था, क्योंकि आज हम एक चौथी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है संस्कृत। लेकिन आज हम एक बर्थडे सॉन्ग गाएंगे, वो भी संस्कृत में, क्योंकि किरण मैम हमेशा कहती हैं कि हमें अपने संस्कृति पे वापस जाना होगा, हमें इस देश में और अच्छाइयां लाने के लिए हमें संस्कृत का साथ देना होगा। तो आज हमारे जो आचार्य हैं संपत जी, उन्होंने हैप्पी बर्थडे टू यू को संस्कृत में ट्रांसलेट किया है, और हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने उसको गाया भी और हमने उसका वीडियो बनाया था। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना माइक ऑन करें और इस गाने को साथ में गाएं। तो जैसे आप गाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो क्या हो जाएगा? शुभ जन्मदिनम तोभ्यम, शुभ जन्मदिनम तोभ्यम। रेडी? ऑल रेडी? अंगूठा ऑल सेट? ग्रेट। सो ऑन अ काउंट ऑफ 3, 2, 1, ओके। शुभ जन्मदिनम तोभ्यम, शुभ जन्मदिनम तोभ्यम। कम ऑन। शुभ जन्मदिनम में तव है, सकलम मधुरम भूयात्, सकलम सफलम भूयात्, सकलम च शशु, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, शुभम भूयात्। सो ये सॉन्ग मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अब कभी आप किसी की बर्थडे में जाएंगे तो आपके पास अपने देश का हैप्पी बर्थडे टू यू होगा, जो कि आप सबके लिए गा सकते हैं। ठीक है? परफेक्ट। तो चलिए हम अपनी अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। और हमने झंडे की बात कर ली, हमने बर्थडे की बात कर ली, हमने संस्कृत की बात कर ली। अब हम चलते हैं आज के विषय पे। सो वैक्सिलोलॉजिस्ट, ये सुनने में कितना खतरनाक शब्द लग रहा है ना, वैक्सिलोलॉजिस्ट। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एकदम से कुछ आएगा बड़ा सा कोट पहन के और शर्लॉक होम्स जैसी कैप पहन के, बड़े से चश्मे लगा के, और बोलेगा हाय आई एम वैक्सिलोलॉजिस्ट, और आपको टंग ट्विस्टर जैसा लगेगा। बट मैं आपको बताता हूँ वैक्सिलोलॉजिस्ट होता क्या है। वैक्सिलोलॉजिस्ट स्टडी होती है फ्लैग्स की। व्हेन वी स्टडी फ्लैग्स, व्हेन वी डू रिसर्च ऑन फ्लैग्स, कि कौन से फ्लैग की स्टोरी क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, उसको वैक्सिलोलॉजी कहते हैं। दैट्स द साइंस व्हिच इज वैक्सिलोलॉजी। और ये आया कहाँ से? किसी को कोई गैस? I think people are not able to open their mic. Shall we open their mics? या आप चैट पे भी डाल सकते हैं। माइक ऑन कर लो, अनम्यूट कर लो। बेस्ट ऐसे चैट पे डाल दें so that you can read the chat box. करेक्ट करेक्ट, चैट पे डाल दो। जिसने भी बोलना है चैट बॉक्स पे लिख दें ताकि आप पढ़ सकें। परफेक्ट परफेक्ट। वैक्सिलोलॉजी आया कहाँ से? वगैरह गैस करो। वैक्स प्लस ओलोलॉजी से गैस करो कुछ भी, यू कैन फील। वैक्सिलम, यस यस, इप्सितो घोष, फैंटास्टिक। सो वैक्सिलम, यस, रोमन फ्लैग, एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल बिल्कुल फैंटास्टिक। ओह, मेरे को तो लग रहा है कुछ बच्चे मुझे बताने वाले हैं। लैटिन वर्ड वैक्सिला। मेरे को लग रहा है मैम आज बच्चे कुछ मुझे ही बताने वाले हैं, तो मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछता, मैं सीधा सी बच्चे को बाय नेम आ रहा है, मतलब क्लियरली आ रहा है वैक्सिलम। नाइस। ये बड़े, मैंने आपको बोला था बच्चे बड़े लायक बच्चे हैं। बहुत बढ़िया मैम। अब एक साल से इतनी सारी किताबें तो आपने पढ़वा रही हैं हम मिस कर गए। फैंटास्टिक। सो हु वांट्स टू बी अ वैक्सिलोलॉजिस्ट? आई वांटेड टू बी। एंड कुछ साल पहले जब मैं थोड़ा क्यूरियस था तो मैंने कहा चलो मैं कुछ समझता हूँ कि
why do we have flags in the world? हम flags बनाते क्यों हैं और उनके पीछे कोई story होती है कि नहीं होती है? So that's how it started. But होता क्या है, when we see a flag, it gives us a feeling, it gives us a sensation, it gives us an importance about who we are, it gives an identity. अगर देखें usually हम क्या बोलते हैं, अरे कौन से शहर से हो, जब अपने देश में होते हैं, जब देश से बाहर जाते हैं तो पहला सवाल क्या होता है, अरे कौन से देश से हो, right? And that's how it represents. Now to all the children, their parents and everyone who has joined it, just imagine these two pictures. Imagine these two pictures without a flag in them. Just close your eyes for 2 seconds and just see. If there's no flag, would you be able to relate to that passion, that victory, Nice. that win, that joy? वो जो मजा है इस पिक्चर का, जब इन दोनों ने कुछ देश के लिए इतना बड़ा नाम रोशन किया अभी कुछ दिन पहले ही, और दोनों ने इकट्ठे, और सुहास तो यही है नोएडा में, तो सोचिए कितना मजा आया होगा। और जब इस झंडे के साथ उसको करते हैं तो वो देश की जो गौरव है उसको और बढ़ा देता है। तो ये एक महत्वता होती है, ये एक इम्पोर्टेंस होती है झंडे की। और ऐसा सोचिए एक झंडा, यस झंडा ऊंचा रहे हमारा। और देखिए झंडा आपसे बातें भी करता है। ये एक बहुत खूबसूरत कोट है जो कि एक यूएस वॉर सेक्रेटरी ने लिखा था, आई एम नो मोर देन व्हाट यू बिलीव मी टू एंड आई एम ऑल दैट यू बिलीव आई कैन बी। फिर से सुनिए 2 पार्ट्स में, आई एम नो मोर देन व्हाट यू बिलीव मी टू एंड आई एम ऑल दैट यू बिलीव आई कैन बी। तो आपके बिलीफ का जो सिस्टम है वो इस फ्लैग से आता है, वो इस क्रिएटिव आर्ट से आता है जिसको हम फ्लैग बोलते हैं, जिसको हम ध्वज और झंडा बोलते हैं। तो चलिए अब हम, क्योंकि आज हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे उसको बहुत मजेदार तरीके से देखें, तो ये 1900 का वर्ल्ड मैप है। इसमें सारे जो फ्लैग्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं कि वो कंट्री किसको बिलोंग करती थी। सबसे प्रोमिनेंट कलर कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? What are the prominent colors that you all can see? Yes, red. Yes, red. Yes. Absolutely. Why? Because that was 1900, right? And most of the colonies, we were under the impact of colonialism. We were ruled most of the part. और अगर इसमें आप एक और खास बात देखें, और मैं हमेशा ये कहता हूँ पेरेंट्स भी जो आज यहाँ जुड़े हैं, कि अगर आप मैप देखना शुरू कर दें तो उस मैप के थ्रू आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। जस्ट बाय सीइंग अ मैप एंड इट्स लोकेशन, वेयर इट इज, वहाँ क्या होता है, वहाँ के रिलीजन, वहाँ की जो सोशल स्ट्रक्चर है, आप सब जान सकते हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ अ मैप। बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट 1900, वी शुड ऑल्सो थिंक कि अब वर्ल्ड मैप कैसा दिखता है। अच्छा, उससे पहले आप अगर इंडिया का मैप यहाँ पे देख रहे हो, तो जो इंडिया का मैप 1900 में दिख रहा था, वैसा ही एक सिंबल अब आज भी यूज होता आ रहा है। Similar symbol, not the exact symbol, in the form of the BCCI logo. So अगर कल को आपको पूछे BCCI का लोगो कहाँ से आया, so you can have a look at the previous flag, the 1900 flag of the country. अब हम बात करते हैं आज क्या हो गया है। तो आज बहुत चेंज हो गया। अब कौन सा कलर आपको प्रोमिनेंट दिख रहा है सब लोगों का? अब थोड़ा रेड तो रह ही जाएगा ना, खाते वक्त गिर जाता है ना कपड़े पे, फिर थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो रेड दिख रहा है। बट यस, ग्रीन इज वेरी मच देयर एंड आल्सो इट्स वेरी डाइवर्स। नाउ इट इज लाइक इट्स स्प्रेड आउट। There is no one particular color. That means everyone is free. They have their own choice of choosing their own identity, and that's what the present world map looks like. So while we are discussing the world, we should actually go beyond the world as well. और हमें समझना होगा कि is a flag possible outside Earth as well? Answers. What do you say? Is a flag possible outside the world? Yes. आपने देखा है कि yes, कहाँ पे गरिमा, कहाँ पे? Where? Yes, moon. Absolutely. Yes, I've given that hint there. So there's the first time the moon, we landed on moon. So we act Mars तो अभी नहीं पहुंचे भाई। ओए कौन पहुंच गया Mars? अभी तो टाइम लगेगा Mars जाने में। But yes, of course, the flag has not been there, but there was a flag which was actually planted on moon. So we'll talk from the space, we'll come back to Earth. तो हम ऊपर से देखते हैं। Now, who was the first person who went to moon? Do you think it's him or who is it? सारे शातिर बच्चे खट या नील खट। Yes, very good. तुमने मेरा सवाल ही नहीं सुना ढंग से। मैं तो पूछ रहा हूँ ये आदमी कौन है? Who is he? Is he Neil Armstrong?
So the first person who reached moon was Neil Armstrong, but the first person who planted the flag on moon was not Neil Armstrong. Yes, Buzz Aldrin. Ladies and gentlemen, one child has given the right answer, Buzz Aldrin. And if you would like to read his book, it's a remarkable book that he has written. He lives in America. He's part of NASA. And you should follow his Twitter handle as well. Post something very remarkable. And 3 books that he has written. I have an illustration book, which is a children's book. And that gave me a lot of interesting insights about their journey when they went to moon. And especially this flag. Why do you think? So this means this flag is fluttering, right? There must be a lot of wind. What? हवा होगी ना वहाँ पे, तभी तो इसको पकड़ के खड़ा होना पड़ रहा है. क्या लगता है? क्या लगता है? No, so there is no wind on moon. So it was especially made in a way that there was a pole that was made in an L shape, so No air. that the flag can always be there. By the way, now there are 5 flags planted on moon on different L1 to L5. There are 5 zones that America has now divided, and there are 5 flags planted on moon. Of course, most of them have become white because of sun rays, but they are still there. Yes, no air, as it does not have atmosphere. Very good. बहुत सही जवाब दिया तुमने. मजा आ गया सुन के. Very good. मेरे रिवीजन हो रहा है आज तो. अब मैं किसी को ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो at least I will not have any challenge. Good. So that's what we discussed. Now let's come back to Earth, and let's start it as a story of as if we are seeing Earth. और हम पिछले 100 साल की कहानी घुमा के वापस देश पे आएंगे. तो चलो हम सबसे पहले वहां चलते हैं, उस जगह चलते हैं जहां से हमारा इंपीरियल रूल शुरू हुआ था, जहां से हमें जरूरत आई कि हमें अपनी आइडेंटिटी चाहिए, क्यों हमें आजादी चाहिए. और ये पता है ये साल इंपॉर्टेंट क्यों है 2021? Tell me why 2021 is important for India. What are we celebrating? एक महोत्सव कर रहे हैं ना. पर सर पिक कैसे खींची? ओ ये बहुत जबरदस्त सवाल है आद्यांश. ये मैं भी तुम्हें बताऊंगा पिक कैसे खींची ऊपर. Yes, we are celebrating our 75th independence year, which we are about to approach. That's why we are calling it आजादी का अमृत महोत्सव. तो इन 75 सालों में बहुत जरूरी है कि हमारे साथ पहले क्या हुआ. 75 साल पहले, उससे 100 साल पहले, 200 साल पहले, जब से हमारे देश में हमें लगा कि इन्वेजन हुआ, लोग आए, हम we became a colony. तो दैट्स व्हाई ये जो सब्जेक्ट है इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि इस आजादी के पीछे, इस झंडे को क्लेम करने के लिए हमने कितनी मेहनत करी है. सो हम शुरू करते हैं इंग्लैंड से. ओके, ये किसका फ्लैग है? गैस करो. कनिष्क को मुझे लगता है पता है. वो एकदम से हंसा. उसने कहा मैं तो गया हूं यहाँ पे, मैंने ये जगह देखी है. यस यस यस. ओ जर्मनी नो, स्विट्जरलैंड नो 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 नो. चलो हम अभी फिर बात करेंगे. ये किसका फ्लैग है? मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है. ये बताओ. ओ पोलैंड तो बिल्कुल नहीं है. पोलैंड नो नो. जॉर्जिया नो नो नो. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. ये किसका फ्लैग है? मैंने उसको कलर बदल दिया, मेरे पास कलर खत्म हो गया. मैंने चलो कलर. इंग्लैंड. ओ वेरी गुड वेरी गुड. ओह यस, स्कॉटलैंड. वेरी गुड वेरी गुड. कुछ लोग क्लोज आ रहे हैं, इसलिए ना देखते रहना चाहिए मैप को, देखते रहना चाहिए प्लेयर्स ने कौन से फ्लैग लगा रखे हैं अपने चेस्ट पे. चलो मैं बताता हूँ. अब ये किसका फ्लैग है? ये सब बता देंगे, ये सब सही बताएंगे. एक ओहो, ऑस्ट्रेलिया कौन बोल रहा है? ये तो बहुत गलत बात है. मैं क्लास में होता तो मैं चौक क्यों धीमे से हल्के से तुम्हारे पास फेंकता. अरे जागो भाई जागो. यूके. अरे वाह, अब ये ठीक आना शुरू हुआ. वेरी गुड. तो अब देखो बड़ी मजेदार बात है. ये तीनों जो फ्लैग है ना, टक टक टक, इनको कंबाइन कर दो. 1 2 3, तो ये बन जाएगा. So that means the UK flag is basically a combination of not one flag but 3 flags, which is on your screen. One is the England, which is the cross of St. George. मैं आपको ये नाम भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप क्यूरियस होंगे ना तो आप सेंट जॉर्ज को जाके ढूंढेंगे. आप सेंट एंड्रयू, जो कि स्कॉटलैंड के बहुत नामी गिरामी एक पादरी थे, जो उनके फादर थे, आप उनको ढूंढेंगे. ऐसे आप आयरलैंड को जाके ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी और स्टोरीज मिलेंगी. आपको पता चलेगा कि सेंट एंड्रयू में दुनिया का सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स है. बट आपको इन तीनों फ्लैग्स के कॉम्बिनेशन से पता लगेगा द यूनियन जैक इज एक्चुअली
made of a combination of 3 flags which are here, and there are thousands of stories. में हजारों कहानियां घुमा फिरा के मिली जुली आपको पता चलेंगी जब आप एक फ्लैग को पढ़ने के लिए जाएंगे, और उसके अराउंड उसकी हिस्ट्री, और ऐसा क्यों हुआ कि ये तीनों कंबाइन कब हुए, इनमें कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी, किसी ने कोई छीना चपटी तो नहीं करी थी, आपको बहुत कुछ पता चलेगा. वेरी गुड करीसा, नेवर न्यू दिस ना, गुड दैट यू नो इट नाउ. चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा. और जैसा कि रूल है कि किसी भी नेशनल फ्लैग को आप जमीन पे नहीं लगा सकते. छोटे बच्चों, थोड़े से और बड़े बच्चों, मेरे ऐसे बच्चों, this is the only flag which as part of the Remembrance Day, which is celebrated for soldiers. This is allowed. Even the Queen's flag, they also put it on the ground. But ये rule है. This is celebrated only in UK, nowhere else. सर एक ये यूके और इंग्लैंड को एक ही कंट्री है? और नहीं, ऐसा नहीं है, फिर से पढ़ना अध्यांश, फिर से पढ़ना. UK and England, they are two. United Kingdom is a combination of the 3 countries, the 3 states that they call, and that's how England, Scotland and Ireland, that's how it is made. मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, मैं सुपर कंफ्यूज होता था, मेरा जीके और यूके सब उल्टा पुल्टा होता था इसी वजह से. ग्रेट, थैंक यू इप्शितो घोष, थैंक यू. I'm assuming ये 15 घोष इप्शितो is not the address of the place, it is their age, right? मैं गलती तो नहीं कर रहा साइना जी? नहीं, Fantastic. It looks like 15 राजपथ. ठीक है, फैंटास्टिक. मैं फ्लैक्स की बात करते करते एड्रेसेस पे कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो गया हूँ. चलो, तो मैंने आपको कोई कहानी सुनाई यूके के फ्लैग की. अब हम यूरोप से निकल के, क्योंकि यूरोप में और भी बहुत सारे देश हैं, बड़ी मजेदार कहानियां हैं. जैसे क्विक एक कहानी मैं आपको बता सकता हूँ. एक फ्लैग है जिस कंट्री का नेशनल कलर तो ऑरेंज है, लेकिन वो उस फ्लैग में है ही नहीं वो कलर. गेस करो कौन सी कंट्री होगी वो, यूरोप से. फुटबॉल वाले जितने हैं ना सब जानते होंगे. फुटबॉल ऑरेंज कौन. क्रिकेट में भी वो कंट्री आती है कभी कभी. ऑरेंज किसकी? नीदरलैंड्स. ना देखा मैंने, क्रिकेट सॉकर और क्रिकेट बोला, सबको याद आ गया. सो नीदरलैंड्स इज द कंट्री जहां पे ऑरेंज गायब हो गया उनके फ्लैग से. समहाउ चेंज होते होते ना उसमें ऑरेंज ही गायब हो गया. दे हैव ऑल ऑफ द 3 कलर्स बट दे डोंट हैव ऑरेंज इन इट. सो अगर जब आप ये वैक्सिलोलॉजी पढ़ने जाओगे ना, तो आपको इतनी मजेदार कहानी मिलेगी. फिर अगर आपकी मम्मी आप बोलेंगे चलो बच्चों हम एम्स्टर्डम घूमने जा रहे हैं, नीदरलैंड्स जा रहे हैं, तो आपको पता भी है, फन फैक्ट्स मेरे पास है बॉस, यू डोंट नो मच. सो यस, द ओल्ड डच फ्लैग इज बेटर. ओके, मैं वापस जाऊंगा अब इस पे, मेरा टाइम आ गया आगे बढ़ने का. ठीक है, तो हम इंग्लैंड से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूएसए, जहां सब जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ डिज्नी है. वहां पे आपका और क्या क्या है डिज्नी यूएसए में? आपकी फेवरेट चीज है बर्गर्स, यस, पिज्जाज, everything come from there, right? पिज्जा आता तो कहीं और से, बट फेमस वहां का हो गया. डिज्नी, यस. what else? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. ओ यस. रुको बच्चे, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास पूछने के. सब अपनी फेवरेट चीजें बताएंगे. वेरी गुड. ठीक है, तो चलो हम यूएस की बात करते हैं. और जो यूएस का ये झंडा है ना, जिसमें बड़े सारे स्ट्राइप्स और ये पट्टियां दिखाई पड़ रही है, इसकी बात करेंगे. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो वर्ल्ड वॉर 2 जापान में खींचा गया था, जब हिरोशिमा नागासाकी से पहले द वॉर वाज अबाउट टू चेंज. सो आप देखिए इसमें कितना पैशन है. हमें आज तक 2019 तक नहीं पता चला था कि ये जो सोल्जर्स हैं ये कौन है. सोचो, इस फोटो के बेसिस पे लोग सोच रहे कौन है, ढूंढ रहे थे बड़े सारे लोगों को. 2019 दिस पिक्चर वाज deciphered, but the flag always remained the core of this. ओके हृदांशा, तुम ना थंडर छीन रहे हो मेरा. तुम मजेदार चीजें पहले ही बता दे रहे हो लोगों को. ठीक है, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम पहले से डिस्क्लोज मत करो. अच्छा, व्हाइट हाउस भी है. ठीक है, वेरी गुड. ओके, नाउ दिस फ्लैग. आप लोगों ने ये फ्लैग बहुत बार देखा होगा. जब भी हम 9/11 की वो जो दर्दनाक मेमोरी है उसको याद करते हैं तो ये फ्लैग आता है. सोचो उस वक्त पूरी बिल्डिंग गिर रही है और ये 3 जाबाज फायर फाइटर्स वहां पर थे उस वक्त, और इनको कुछ नहीं सूझा. जब ये औरों को बचा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, इनको एक चीज का एक जज्बा था इनके अंदर कि हमें हमारा फ्लैग फिर लहराना है. द कंट्री विल राइज अगेन. और ये हर कंट्री का होता है. जब भी आप अपने देश को देखते हैं, अपने झंडे को देखते हैं, तो आप में ये जज्बा वापस आ जाता है. राइट? अच्छा दक्ष, तुम मुझे चैलेंज करो 52 स्टार, मैं अभी तुमसे तुम्हारा जनरल नॉलेज चेक करूंगा. 2 मिनट दो मेरे को. तुम्हारे चैट पे बड़ी मजेदार चीजें आ रही है. चलो तो हम यहाँ बात करते हैं. नाउ दिस वाज द फर्स्ट फ्लैग व्हिच स्टार्टेड एट द बोस्टन टी पार्टी इन 1773.
Any guesses why they have, how many stars are there? Not the guess, but I'm just asking you to count. 13 colonies. Fantastic, fantastic. 13 states. Correct. And how many stripes? 23, 13 stripes. How many red? How many white? Count karo. 7 and 3. Okay, so 7 red, 6 white. मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि वो 7 और रेड कैसे चूज किया था उन्होंने, राइट? बट आई विल मूव ऑन इट नाउ. सो इनिशियली दैट्स हाउ व्हेन दे डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस इन 1773. अगर आप बॉस्टन टी पार्टी पढ़ोगे ना तो आपको टी और कॉफी के बारे में कुछ बड़ा मजेदार पता लगेगा. आपको इंडिया का कनेक्शन भी पता लगेगा बॉस्टन टी पार्टी के साथ, और इस फ्लैग के साथ इंडिया का कनेक्शन क्या है. बट ये सारी चीजें मैं आपको क्यूरियोसिटी के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा. They busted that 13 is unlucky. Okay, good. Dumping tea into the sea, absolutely. ठीक है. बट ये जो स्टार्स है ना, ये इनका एक सीक्वेंस है. आप ऐसा ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना दिया. मैंने ड्राइंग का प्रोजेक्ट दिया कि चलो कहीं भी टिक 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 स्टार्स बना दिए. So this is the sequence that you have to follow. And if you go to the charter of USA, you will find that even the spacing is defined. The angle at which each star is placed is defined. So अगर 13 स्टार से शुरू हुए तो ये इतना आगे कैसे पहुंच गए? ऐसे पहुंच गए कि बीच में बड़े सारे उसमें चेंजेस हुए. जब तक वो फाइनलाइज हुआ कुछ चेंजेस हुए. ये मैंने हिस्ट्री चैनल से उसका हिस्ट्री उठाया है. यस, नाउ यू आर राइट, एब्सोल्युटली. और ये होते होते बहुत सारे चेंजेस हुए. कई सारे स्टेट्स ने अपने स्पेसिफिक रखे. बट आप इन सब में देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल है, बार बार आ रहा है. कौन सा एनिमल है? बहुत सारे फ्लैग्स पे दिखेगा आपको अमेरिका के. Bald eagle is one. Yes, वो एक बार तो आया, 2 बार आया, 2-3 बार आया. But snake is also very much visible. And if you see, don't tread on me. So these are towards the desert side of America. And अगर आप इसको और पढ़ोगे, you'll find umpteen number of stories of why it was chosen, the eagle and snake. There's so many such stories. I can recommend some very interesting books as well as links to you. आगे बढ़ते हैं. चलो, हम पैशन की बात कर रहे थे, अमेरिकन फ्लैग के पैशन की बात कर रहे थे. तो भाई ऐसे में हिटलर ने पूछा, अरे ये कैसे हो गया, इतना पैशन कहाँ से ले आया भाई, क्या हो गया ये? तो मैं आपको ये वाली स्टोरी सुनाता हूँ कि हुआ क्या था. How many of you know why Hitler was so angry seeing the flag like this? Why do you think? हिटलर को गुस्सा क्यों आता है अमेरिका का फ्लैग देख के? क्योंकि the flag cannot be lowered. और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, जब सब परेड में निकलते हैं ना तो फ्लैग लेके जाते हैं, टप थोड़ा सा नीचे करते हैं. अमेरिकन साइड हमारा फ्लैग तो नीचे हो ही नहीं सकता एज ए रूल, तो इसलिए हमेशा ऊपर रहेगा, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा. हिटलर गुस्सा आ गया. हिटलर, अरे व्हाट इज दिस, ये तो तुमने मेरी तौहीन कर दी, ऐसे कैसे? सो एज दे डिडंट लोअर देयर फ्लैग, ही गॉट रियली रियली एंग्री. नाउ इमेजिन द कंट्रीज कैन फाइट ओवर इट. मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूँ. एक बार ऐसे ही किसी एक स्पोर्टिंग इवेंट के टाइम पे नॉर्थ कोरिया का फ्लैग साउथ कोरिया से चेंज हो गया था. सोचो क्या हुआ होगा. इमेजिन हाउ डिफिकल्ट दैट वुड हैव बीन फॉर द 2 कंट्रीज. तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको पता लगेंगी जब आप और इस पे रिसर्च करोगे. हम अब अमेरिका से थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हमने इंग्लैंड का, हमने यूरोप कर लिया, हमने नॉर्थ अमेरिका की स्टोरी करी. अब चलो हम आते हैं साउथ अमेरिका. आप घूम घूम के पता है वापस इंडिया की तरफ आएंगे. ये किसका मैप है जिसपे हमने गोला बनाया हमने? ब्राजील. वेरी गुड. सो ब्राजील का नाम याद आती क्या आता है? फुटबॉल प्लेयर्स को फुटबॉल, कॉफी प्लेयर्स को कॉफी, और जो गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं उनको अपना गोल्ड याद आता है, राइट? और आजकल जो एनर्जी वाले लोग हैं उनको अपना बायोफ्यूल पता लग जाता है, शुगर के इन चीनी. सो ब्राजील इज एक्चुअली वेरी वेरी रिच. बट आपको पता है इसकी खासियत क्या है? ये इतने सारे स्टार्स टेढ़े मेढ़े इधर उधर बने हुए हैं. What is this? रियो मूवी कोकोआ ब्राजील. ओके ओके ओके. ये एक स्टार ऊपर चढ़ गया, पता नहीं हवा में चढ़ा गया, बीच में और दे प्रोग्रेसो लिखा हुआ है. क्यों ऐसा? क्यों ब्राजील का फ्लैग क्यों? यस, वेरी गुड वेरी गुड. ये तो बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, सब कुछ पहले से पता है. चलो, तो मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ कि ये जो स्टार्स आपको दिख रहे हैं, बेसिकली इट्स ए हॉरोस्कोप. जिस दिन पोर्चुगीज हुकूमत से ये आजाद हुए तो ब्राजील के लोगों ने सोचा, भाई क्या ऐसी चीज बड़ी खास हुई है? देखा भाई, जो हमारा कॉन्स्टलेशंस है ना इस वक्त हमारे रियो सिटी के ऊपर, हम उसी को मैप पे डाल देते हैं. सो बेसिकली दीज आर द 9 कॉन्स्टलेशंस, द पोजीशन ऑफ स्टार्स
that they have placed on their flag. Imagine, मैं तो भूल जाऊंगा, मैं तो नहीं बना पाऊंगा ये फ्लैग, कोई मुझे बोलेगा, और अगर इस पे नंबर रख दिए कि सही जगह स्टार को रखना पड़ेगा, मैं तो नंबर 0 आने वाले हैं पक्का, मैं नहीं कर पाऊंगा. Yes, that's how it is. You are correct. So this is the story behind Brazil. And you know why they have these two colors, the green and yellow? Any guesses? Any guesses? No. Chalo, ek to Daksh ne no bola. Very good. So the green is for the greenery. So when they were making their flag, green is for the forest, absolutely. And the yellow is for the gold, their capability of their resources, their natural resources. So that's what a flag became. So कल को अगर आप भी अपनी टीम का फ्लैग बनाओगे तो आप बहुत सारे फैक्टर्स देखोगे. You will see how can I include everyone. कल को आप हो सकता है अपना फ्लैग बनाओ, आप पुष्पराज हो सकता है आप अपना फ्लैग बनाओ. चलो यार मैं आज अपना फ्लैग बनाता हूँ, तो एक उस पे आप पुष्प लगाना और आप उस पे अपना एक सिंबल लगाना, right? So you can make your own flag. Everyone can make their own flag. So that's what I was telling you. That was November 15, 1889. See, ज्योतिषी मानते हैं वो भी, और यहाँ पर मम्मी पापा का भी कहते हैं जन्म पत्री दिखा लो, तुम लोग हंसने लगते हो. ऐसे थोड़ी होता है, ब्राजील में भी ज्योतिषी चलता है बॉस. So there's a lot of scope. हाँ, ऐसा मत समझना. चलो, तो अभी हम साउथ अमेरिका से चलते हैं. हमने इंग्लैंड कर लिया, हमने यूरोप कर लिया, हमने नॉर्थ अमेरिका कर लिया, हमने साउथ अमेरिका कर लिया. अब चलते हैं हम कहाँ चलेंगे हम चलते हैं अफ्रीका. अफ्रीका बड़ा मजेदार है, वो कितना कलरफुल है, राइट? इट्स वेरी वेरी कलरफुल. There's so many stories. It's very big. It's amazingly rich. Yes, Arabic colors, you are right. The 3 or 4 very prominent colors, very much scattered, very similar. The Pan-African colors, भाविक, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बड़ी ही डरावनी चीज. इसका नाम तो सबको पता होगा, बहुत सारे गेम्स हैं उसमें खेलते रहते हैं. Yes, the gun, 1000 types of gun, बहुत सारी guns. Yes, it's the OMG. Yes, it's a machine gun. But ये machine gun एक झंडे पे है, and that too on the flag of Mozambique, which is AK-47. Now I'll tell you why there's a gun on the flag of Mozambique and on this part of the continent. So according to them, the gun is basically that they can pick up their weapons if someone attacks them. They respect their sovereignty, they respect their freedom. उनको अपनी स्वाधीनता बहुत प्यारी है. लेकिन आप देखिए किताब के साथ गन भी है और एक फावड़ा भी है. There's a spade as well. Now that shows that they are very universal in their thinking, and that's how the flag was designed. It represents that that's what we are. ये है हम, ये मोजाम्बिक है. तो अब आपसे कभी कोई सवाल पूछे कि ऐसा कौन सा फ्लैग है जिसपे एक बंदूक बनी हुई है, तो आपको याद रहेगा मोजाम्बिक. चलिए, ओह ये बड़े परेशान दिख रहे हैं अंकल, क्योंकि ये फ्लैगमैन है. इनका नाम है माइकल टाइवो अकीन कूनमी, और ये फ्लैगमैन है. लेकिन ये कहाँ के फ्लैगमैन है ये मैं आपको बताता हूँ. Yes, Aryan, scholars, farmers and soldiers, जय जवान जय किसान भी मोजाम्बिक के लिए कहा जा सकता है. बिल्कुल ठीक. हम अब पहुंचते हैं नाइजीरिया के झंडे पे. मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, कहानी लंबी है, लेकिन एक इंसान थे 1970s के अराउंड, इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, और नाइजीरिया जब आजाद हुआ तो वो बोला चलो झंडा बनाते हैं. उन्होंने एक झंडा बना के भेजा. ये तो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, झंडा अप्रूव भी हो गया, सब कुछ हो गया, इनको पता ही नहीं चला. उसके बाद बहुत सालों बाद एक यंग बंदा, इनफैक्ट उससे मेरी बात हुई, जो अभी वो पीएचडी कर रहा है, वो स्कॉलर, वो उसको ऐसी मेरे ऐसी क्यूरियोसिटी थी, मैं पता नहीं हमारा झंडा किसे बनाया, चलो ढूंढता हूँ. एंड ही फाउंड दिस जेंटलमैन माइकल टाइवो अकीनवुमी इन अ वेरी वेरी poor condition. He was living in a very poor house, in a very very bad condition, utter poverty. फिर वहां पर ये जो इंसान थे जिन्होंने इस झंडे को बनाया था, उनको अवार्ड किया गया. He was given a nice place to live, और that's how the story of the Nigerian flagman is very interesting. So much so कि जिस घर में अभी रहते हैं ना, उसका पेंट भी यही 3 तरीके से हुआ. इस पे बीच में एक हरी पट्टी है और एक सफेद पट्टी है, 2 तरफ हरी पट्टी है. So that's how it is. Okay. चलो, तो हम अब नाइजीरिया से आगे बढ़ते हैं. अब हम अफ्रीका. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 180-185 देश करने लगा तो फिर ये जूम चलता ही चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा. लेकिन हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि आज हम ब्रिज बेदी जी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो खुद बहुत क्यूरियस थे, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, मैं चाहता हूँ आप लोग भी ढूंढिए, हर कंट्री के बारे में ढूंढिए, उसको रिलेट कीजिए, अपने देश के बारे में और ढूंढिए. दैट्स द मैसेज दैट वी वांट टू गिव. और साउथ अफ्रीका से चलिए हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ. अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं. ऑस्ट्रेलिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बताऊंगा आपको.
मैं आपको उससे पहले बताऊंगा हवाई के बारे में। हवाई देखो दिख रहा है नहीं हवाई, 49th स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉट विजिबल, बट अमेरिका में है भी नहीं वो स्टेट, तो इट्स एन आइलैंड राइट, बट नॉट विजिबल। बट यहाँ देखो ये दिख रहा है छोटू सा, बिल्कुल चिन्नू सा, दैट्स हवाई। And it has played a very, very, very prominent role, not only in the history, in the wars, but also in the recent past. In fact, today, जब हम आज बात कर रहे हैं, as one of the major bases, air bases of the world, for America, it controls a lot of geopolitical power as well. लेकिन मैं हवाई के झंडे की बात करूंगा, नॉट द ऑस्ट्रेलियन झंडा। हम गए उस कॉन्टिनेंट की तरफ से, बट मैं ये करूंगा। यस, ये देखो, ये क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस झंडा? What is this flag like? यूके का? हाँ, यूके का नहीं है ये हवाई का फ्लैग है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा अमेरिका का फ्लैग और यूके का फ्लैग? ऐसा नहीं लग रहा दोनों रास्ते में मिले, ले यार तू मेरा फ्लैग ले ले, मैं तेरा फ्लैग ले लेता हूँ, और दोनों को आपस में सिल दिया, बन गया यूके और अमेरिका का फ्लैग। सो दैट्स एक्चुअली हैपेंड, राइट? सो जब ब्रिटेन हर तरफ जा रहा था, यूनाइटेड किंगडम हर जगह कॉलोनीज बना रहा था, हर जगह अपना झंडा फहरा दे रहा था, तो बीच में एक जनरल थे, वो जा रहे थे अपनी शिप से, टिंग 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 टिंग, उन्होंने देखा अरे ये हवाई का मुझको एक, ये तो बड़ा अच्छा आइलैंड है, मैं इस पे अपना झंडा फहरा देता हूँ। तो जो हवाई का किंग था उसने कहा सर देखिए ऐसा है, हमारा ना आपसे पैक्ट हो रखा है, आपकी जो रानी है ना वही दोस्त है, सो प्लीज हाँ ज्यादा पंगे मत कीजिए मेरे से। लेकिन जनरल ने बात ही नहीं मानी, उसने कहा ऐसे कैसे, मैं बॉम्ब गिरा दूंगा तुम्हारे यहाँ, मैं इतनी बड़ी शिप लेके आया हूँ, धाए धाए बहुत सारे बॉम्ब गिरा दूंगा। तो जो बेचारा छोटे किंगडम का किंग था ना, उसने कहा अच्छा भैया ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुमने झंडा गाड़ लो, खुश रहो, ठीक है। वो 5 महीने तक झंडा गड़ा रहा। फिर जो जनरल के बॉस थे ना, बड़े वाले जनरल, वो आए एक दिन, उन्होंने कहा यार तुम्हें पता नहीं है 1803 में पैक्ट हुआ है हमारा हवाई के साथ, बिकॉज इट वाज अ रीफ्यूलिंग स्टेशन व्हेन द शिप्स यूज्ड टू ट्रैवल, दिस वाज अ रीफ्यूलिंग स्टेशन। एंड इवन टुडे अगर आप देखें, why it is important base, because for a long distance to travel across the seas you need a refueling station। तो जब वो बड़े वाले जनरल है, हमने कहा क्रैक, ये क्या कर रखा है तुमने, हटाओ यहाँ से अपना झंडा, उन्हें हटा दिया और वापस फिर से हो। सो हवाई was colonized only for 5 months, only for 5 months। This is the least that the Britain could rule an island in the world. That's an amazing history about it। And between America, Australia and Britain, this is almost equidistant. It is also very close to Japan, equidistant to Japan। That's why strategically this is very important। तो बच्चों अभी तो आपको लग रहा है क्या ज्योग्राफी में कहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा दिया, लेकिन जब आप बड़े होके ना, जब आप इंजीनियरिंग करके नासा या इसरो कहीं जाओगे, तो आपको ये नंबर्स, या मान लो आप पॉलिटिशियन बनोगे या आप एक IFS ऑफिसर बनोगे, तो ये आपको इतना स्ट्रेटेजिक लगेगा ना कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब आप ऐसी प्रेजेंटेशन किसी को दिखाओगे ना कि लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन हवाई, तो सब बड़े इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। तो इसलिए पढ़ना ना जरूरी है सारे फैक्ट्स। मेरे को तो बड़ा टाइम हो गया, तो मुझे लगता है कम से कम आपको मजा आना चाहिए। चलो हम ऑस्ट्रेलिया से चलते हैं थोड़ा और आगे, अब वापस आते हैं इंडिया। मैं एक्चुअली आपको चाइना और रशिया के बारे में बताना चाह रहा था। चाइना बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है चाइना में क्या है, 5 स्टार्स हैं, और चाइना के 5 स्टार में से एक स्टार इज फॉर इंडिया, एंड दैट टू नॉट द प्रेजेंट इंडिया, बट इंडिया ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, जब हम भारत बोलते थे। तो ये ना सर्च आपको करना पड़ेगा, ये कहानी मेरे को तो पता है, मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, आपको सर्च करनी पड़ेगी, कुछ तो करोगे भाई। और दूसरा रशिया, चलो रशिया के फ्लैग की नहीं बात करते, लेकिन रशिया की बड़े होने की बात है, इतना बड़ा कि देखो एक्चुअली आधा वर्ल्ड मैप तो रशिया का ही है देखा जाए तो। गेस करो कितने टाइम जोन्स हैं रशिया में, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? मतलब टाइम जोन समझते हो ना, कि मैं कश्मीर से चला कन्याकुमारी में जाके 5, 7, 12, बेटा वेरी गुड 9, वेरी गुड। सो देयर 9 टाइम जोन्स। मैं सोचता हूँ यार 9 घड़ियां पहननी पड़ती होंगी, उनकी तो घड़ियां भी अलग होती होंगी। 9 टाइम जोन्स, यहाँ हम इंडिया में बैठ के 5 टाइम जोन इधर उधर के दूसरी कंट्रीज के मैनेज नहीं कर पाते। 9 टाइम जोन्स, दैट्स हाउ बिग इट इज। और मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि मैप जरूर देखा करो, क्योंकि अब आप धीमे धीमे जब आप देखेंगे, ये तो फ्लैग्स का मैप है, लेकिन आप देखेंगे साइबेरिया में जो पहले व्हाइट हुआ करता था, now slowly coming to green, and they're producing lot of lettuce, lot of greenery is now coming up because of global warming. Ice is melting, and the places that were severe cold, now they are slightly warmer. So that's why you will get a lot of respect. आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जान के कि आपको एक ऐसी चीज पता लग रही है जो कि आपको आगे वाली जनरेशन के लिए बड़ा जरूरी है। That's what maps do to us.
half of the Russia is covered with, yes, permafrost. बिल्कुल ठीक है, permafrost or the permafrost, you are right, but that's what is happening. That's why the land prices are going up. They are able to do vegetation. लेकिन ये कहानियां मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, मुझे मजा बहुत आएगा लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम भी कम है और आपको भी तो कुछ करना है. चलिए, तो हम इंडिया के फ्लैग्स पे आते हैं. अब जब अपने देश के फ्लैग आते हैं तो इतने सारे फ्लैग्स, ये कैसे हो गया? इतने सारे फ्लैग्स, इमेजिन, इतने सारे फ्लैग्स इंडिया के. This is before independence, when the princely states used to exist in our country. इतने सारे फ्लैग्स थे हमारी इस कंट्री में, हर जगह का. मैंने अपना एक बड़ा सा एरिया लिया, मैं यहाँ का राजा हूँ. ठीक है भाई, डन हो गया. So that's how lot of flags, lots and lots of flags were there in India. At one point of time, in fact, we had so many flags, जितने पूरे दुनिया के नहीं थे. लेकिन फिर हमारे जाबाज लाल बहादुर शास्त्री, हमारे सरदार पटेल जी ने मिलके इन सबको एकजुट किया और बहुत बढ़िया तरीके से देश का एक फ्लैग बनाया. लेकिन क्योंकि अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो 1857 के उस वॉर के बाद, जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी 1857 में, उसके बाद ये फ्लैग जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, तो ये फ्लैग ऑफिशियल फ्लैग हो गया. आपने ऐसे कई मूवीज में देखा होगा, लगान में, आगे पीछे बहुत सारी जगहों पे आपको ये फ्लैग दिखाई पड़ा होगा. ओके, लेकिन उसके बाद बहुत सारे फ्लैग हम भी बना रहे थे. ऐसे कैसे भाई? हैं? अगर ब्रिटेन बना सकता है तो हमें भी तो आजादी चाहिए थी. सो ऑलमोस्ट आफ्टर 50 years, दिस वाज द फ्लैग दैट वाज क्रिएटेड बाय सिस्टर निवेदिता विद स्वामी विवेकानंद. और उसमें पता है कोई बंगाली है? बंगाली किसको पता है क्या लिखा है? क्या लिखा होगा? गैस करो, गैस करो, क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा इस फ्लैग पे? बताओ बताओ. नो बंगाली? यस यस, मम्मी से पूछो. वंदे मातरम. वेरी गुड. सो वंदे मातरम वाज रिटन ऑन दिस फ्लैग. दिस वाज 1904 बाय सिस्टर निवेदिता. इसको आज भी सिस्टर निवेदिता का फ्लैग कहा जाता है. आप उनके बारे में और पढ़िएगा. वेरी इंस्पायरिंग. And females have actually played a great role in our, and that too, females from the foreign countries have played a great role in our independence struggle. चलिए, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. 1906 कलकत्ता में पहली बार हमारा फ्लैग लहराया गया, जिसपे 8 लोटस थे. वैसे किसी को आंसर पता है कि 8 लोटस क्यों थे? कोई क्यूरियस बच्चा है? कोई ऐसा मम्मी पापा जो फटाफट गूगल की बर्थडे सेलिब्रेट करें और गूगल से पूछे, भाई बताओ 8 लोटस क्यों थे? अच्छा, मिल जाए तो मुझे बता देना. मुझे भी नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा. मैंने कुछ किताबें मंगाई है पुराने. नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, 8 चक्रास नहीं नहीं नहीं. 8 provinces of India was closed, but actually तब तक डिवीजन हो चुका था हमारा. तो वो 8 वाला आंसर ना मुझे मैच नहीं किया. लोटस ब्लूम्स इन मडी वाटर्स है. ओके, अच्छा ठीक है. चलो, 1907 में पेरिस. दिस वाज एज पार्ट ऑफ द बर्लिन कॉन्क्लेव, वेयर द पेरिस कॉन्क्लेव, जो कि एनी बसंत, नॉट एनी बसंत, बीकाजी कामा. बीकाजी कामा वैसे आपको पता है ना, दिल्ली में एक जगह भी. कितने लोग दिल्ली से हैं? बीकाजी कामा एक जगह है ना. कई बार बोलते हैं बीकाजी कामा से निकाल ले. या फिर पूछता है कहाँ पहुंचा? मैं ना बीकाजी कामा आ गया हूँ. बट शी वाज अ लेडी. शी वाज वन ऑफ आवर contributors to the independence movement, and this was actually designed alongside Veer Savarkar. तो ऐसे चेंज हुआ. उसके बाद एकदम से अरे ये क्या हो गया? कलर ही चेंज हो गया, कुछ नया सा आ गया 1917 में. बताओ क्या चल रहा था 1917 में ऐसा कि वापस जैक वापस आ गया हमारे इसके ऊपर? ऐसा कैसे? पूछो. सो 1906 में जैक गायब हो गया. जैक मतलब यूनियन जैक यार, नॉट दैट जैक स्पैरो वाला जैक. 1907 में फिर गायब हो गया. लेकिन 1917 में एकदम से डॉइंग फिर से जैक वापस आ गया, वो भी ऊपर और नीचे 7 तारे. वैसे ये जो 7 स्टार्स हैं, these are सप्तऋषि. हाँ, this is that constellation. So वापस आ गया. एक्चुअली प्लीज हो गया 8 मेन चक्रास. ठीक है, मैं इसको लेता हूँ, ये 8 चक्रास वाली स्टोरी लेता हूँ. मुझे कहीं मिली, बट आई विल सर्च एंड आई विल टेक योर नेम एवरी टाइम आई गेट इट. 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था. ओके, वेरी गुड. बट और भी बहुत कुछ चल रहा था. अगर उस वक्त देखो तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था. ब्रिटिशर्स ने हमसे कहा, अरे सुनो, तुम अपने इतने महान बढ़िया सोल्जर्स हैं, तुम्हारी इतनी बढ़िया फोर्स है, एंड किरण मैम कैन रिलेट टू इट, हमारी इतनी बढ़िया पावरफुल फोर्स है, तो चलो तुम हमें मेरा साथ दो, हम इंडिपेंडेंस दे देंगे. एंड आवर ग्रेट लीडर्स, दे एक्चुअली थॉट इट्स अ गुड प्रॉमिस. So it became a combination. This was by Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. 1917, this was the flag which was announced.
और उसके बाद फिर महात्मा गांधी, क्योंकि तब तक महात्मा गांधी वाज वेरी प्रोमिनेंट इन द स्ट्रगल सीन, ही वाज डूइंग लॉट ऑफ टूर्स, ही केम बैक। और जब वो एक बार तेलंगाना गए, आंध्र प्रदेश गए, विजयवाड़ा, तो उनको एक यंग फ्रीडम फाइटर मिले, पिंगलिया। उन्होंने कहा कि अरे सर, ये देखिए मैंने ना हमारा नेशनल फ्लैग बनाया है। तो इट वाज ओनली रेड एंड ग्रीन बिकॉज ही वांटेड अ कम्युनल, अ वेरी सेक्युलर फ्लैग टू बी यूज्ड। तो महात्मा गांधी ने कहा सही बेटा, सुनो, तुमने बनाया तो इसमें थोड़ा सफेद भी ऐड कर दो, तब जरा बढ़िया सेक्युलर होगा, हमारे और सारे रिलीजन्स भी उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और क्योंकि हम ना स्वदेशी हैं, हमें चरखा चलाना है, तो चरखा भी ऐड कर दो। यहां से पहली बार चरखा ऐड हुआ 1921 में। और मैं आपको हमारे फ्लैगमैन ऑफ द कंट्री की स्टोरी में थोड़ी देर में सुनाऊंगा। मैंने इससे पहले कौन से फ्लैगमैन की स्टोरी सुनाई थी, आपको बताओ। व्हाट अदर फ्लैगमैन डिड वी स्पीक अबाउट? मैंने नाम बोला था ना बड़ा, माइक, हाँ, नाइजीरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको नाइजीरिया के बाद इंडियन फ्लैगमैन की स्टोरी भी बाद में सुनाऊंगा। वो 1921 में मिले थे महात्मा गांधी से। लेकिन इसके बाद 1931 में एक और कन्वेंशन हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई हम ये वाले फ्लैग को अपना प्रोमिनेंट फ्लैग रखेंगे, दिस विल बी आवर फ्लैग। और चरखा वहां बरकरार था, चरखा चलता रहा, सूत हम बनाते रहे, कॉटन बनाते रहे। और 1947 में आके this was adopted as our national flag, which we still use with the chakra, you all know, which was Ashok chakra that is being used there. And that's how our story gets complete of the evolution of the flag. But लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, अभी बाकी है। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ एक और बड़ी मजेदार बात, जो कि तुम्हें शायद इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी, उसके अंदर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे पिंगली वेंकैया जी। जैसे नाइजीरिया के फ्लैगमैन अपनी मृत्यु तक बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे, ऐसे ही हमारे फ्लैगमैन भी 1963 तक बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे, जबकि इन्होंने देश का झंडा डिजाइन किया था। और इसीलिए जब अब हम इनकी बात करते हैं तो वी शुड रेस्पेक्ट, वी शुड डू समथिंग सो दैट व्हाटएवर ही डिड फॉर द कंट्री वी शुड ऑल फील प्राउड अबाउट इट। हम कुछ ऐसा करें इस देश के लिए कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे बोले कि अरे वाह, इनके लिए लड़े थे, देखा हम। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। अरे कोई 8 लोटस पे अटक गया है, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। 8 लोटस का आंसर तो अब दोस्त ढूंढ के ही रहेंगे, कुछ हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलो कुछ खाने पीने की बातें हो जाए, ठीक है। कुछ मजेदार बात करें खाने पीने की। सोचो ये एक फ्लैग है जिसपे ना कुलचा बना हुआ है, कुलचा। कुलचा सब खाते हैं ना, कितने लोग कुलचे के बारे में जानते हैं? कनिष्क ने सबसे पहले लिखा, यस, गरिमा ने लिख दिया है, गिव रेस्पेक्ट। ओके, नहीं, कुछ और आंसर है। Chicken leg piece with kulcha, not bad. Okay, yes, Nizamiyat. This is the Hyderabad flag. This is the flag of the Hyderabad Nizam. अब इसमें कुलचा कहाँ से आ गया? ये बड़ी मजेदार कहानी है। सोचो किसी फ्लैग पे कुलचा आ सकता है, मतलब कैसे? मतलब मेरा मन है बर्गर लगा दूंगा, मेरे को बहुत पसंद है मेरा फ्लैग आज से बर्गर। बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं था, राइट? हुआ क्या था, जब डेक्कन सल्तनत बनी और वहां के जो सूबेदार वहां वो गए, वो सबसे पहले औरंगाबाद गए। तो वहां पे उनके जो हजरत औरंगाबादी थे और जो मीर कमारुद्दीन जिनसे मिले वो, तो हजरत औरंगाबादी ने कहा कि भाई देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो तो पहले तो ये कुछ खाओ, कुलचे खाओ, मैं तुम्हारे कुलचे रखे हैं। तो उन्होंने पीले कपड़े में लपेट के उनको 6 या 7 8 कुलचे खिलाए। तो जो मीर कमरुद्दीन थे ये बड़ा खुश हुए, कहते हैं अरे वाह। फिर उन्होंने कहा पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं तो बड़ी बुरी हालत में यहाँ आया हूँ, मैं कैसे मैनेज करूंगा। और तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी बहुत पुश्तें बहुत आगे जाएंगी। और आप सबको पता है ना कि हैदराबाद के निजाम के पास कितने पैसे थे? इतने पैसे थे कि कोई काउंट ही नहीं कर पाता था। He had so much money, he had so much money that nobody in the world could even estimate it today how much money he had. लेकिन ये वाले जो बड़े वाले निजाम साहब थे, ये तो थे। उसके बाद और निजाम आए, जो उनके लास्ट निजाम थे, बड़े कंजूस किस्म के थे। वो लोगों से पूछते थे, अरे भाई सुनो, चाय के साथ सिर्फ 1 बिस्किट देना, कोई आया है मिलने, 1 ही बिस्किट देना। कोई अगर ज्यादा चावल डाल ले प्लेट में, अरे इतना थोड़ी खाओगे, बदहजमी हो जाएगी, डाइजेशन हाजमा खाना पड़ेगा, ये मत करो। तो ऐसे निजाम थे। और अब आप सबको पता है क्या हुआ उसके बाद, जब हम आजाद हुए तो एक कुलचा बेचारा सब खा गए, और लेकिन हम हैदराबाद को इस देश के अंदर मिला पाए। तो सोचो फ्लैग के ऊपर कुलचा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। Now you know, now you can run a quiz on your birthday with your friends कि चलो जो भी बताएगा उसको 1 कुलचा 1 छोला भटूरा फ्री मिलेगा, ठीक है।
आप ऐसा कर सकते हो। सोचो, तो ऐसे करके हमारा ये फ्लैग आज यहाँ पहुंचा है। जब एनेक्सेशन कंप्लीट हुआ, जब सरदार पटेल ने सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया, तब हमारा झंडा जो आज हम देखते हैं वो बनाया। और ये जो तीसरी पिक्चर आपको दिख रही है, ये चांदनी चौक है दिल्ली का, जहां पर पहली बार हमने अपने तिरंगे को लहराया। तो हम तिरंगे के बारे में कुछ और बात करेंगे, तो वहां पे हम अपने सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया 6। ओ बाबा रे, जल्दी। ओके, बट बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। 1857 रेजिडेंसी लखनऊ। लखनऊ वो शहर है जहां से मैं आता हूँ, कुलचे बड़े अच्छे मिलते हैं। तो कुलचे की कहानी छोड़ते हैं, चलो रेजिडेंसी की बात करते हैं। 1857 से लेके 1947 तक ब्रिटेन हर जगह बोलता था, सन नेवर सेट्स डाउन फॉर अस, नेवर नेवर, हमारा झंडा हमेशा लहराता रहता है। क्योंकि रेजिडेंसी जहां पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हुआ था और जहां बहुत बर्बरता हुई थी, हर पेड़ के ऊपर एक हिंदुस्तानी को टांग दिया गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद, एज अ पार्ट ऑफ द क्रूएल्टी to suppress that revolt against Britain. 1857 से लेके रेजिडेंसी के रूम्स के ऊपर एक झंडा, यूनियन जैक, हमेशा लहराता रहता था। और इसी बीच में 1920s के अराउंड आयरलैंड ने बोला कि यार हमें आजादी चाहिए बॉस। आयरलैंड और ब्रिटेन की टिंग 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 थोड़ी लड़ाई शुरू हुई। और सोचो, 15 अगस्त को यूनियन जैक नीचे नहीं आया था। 13 अगस्त 1947 को लखनऊ में, जहां की ब्रिटेन कहता था कि हमने ये फतेह किया, लखनऊ से ही 1857 रिवोल्ट को दबाया गया था। 13 अगस्त 1947 को शाम को 8 बजे, और वो भी आयरनी ऑफ द लाइफ इज, आयरलैंड नाम के आदमी ने ब्रिटेन के झंडे को भारत में नीचे उतारा। देखा, हिस्ट्री कम्स बैक। हाँ, जैसा करोगे वैसा करोगे। आयरलैंड नाम का आदमी, he would have never imagined. He was a caretaker at the residency and he brought the flag down. Not only the flag, but he took the entire pole out. The entire pole was taken out. The entire platform was reconstructed. And as it is said, that's how the Union Jack actually went out. Not on 15th August, but on 13th August. 2 दिन पहले। जनरल नॉलेज का एक और सवाल हो गया आपके लिए। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट फ्लैग था, बट डू यू थिंक दैट वाज द लास्ट ईयर ऑफ द यूनियन जैक गोइंग आउट ऑफ अ कंट्री? फ्लटरिंग मतलब कहीं झूल रहा था। गेस करो कौन से साल में लास्ट फ्लैग झूला होगा कहीं पे? किसी बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ था अभी भी, ब्रिटेन का फ्लैग। 47, 1950, 62, 72, 90। व्हाट? गेस करो 62, 950। हाँ, 5 लोग तुक्का मारेंगे, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया। मारो तुक्के मारो। ये आर्यमा नाम की लड़की बहुत जबरदस्त तुक्का मार के भी बहुत खुश हुई है। इसने मुझे लिखा, ओए 4890। माय गुडनेस, नाउ दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। चलो मैं बताता हूँ कब हुआ था। वो हुआ था 1975 में, एंड उसका भी लखनऊ से कनेक्शन है, लेकिन वो लखनऊ में नहीं हुआ था। इट हैपेंड इन कैलकाटा, क्योंकि लखनऊ के जो नवाब साहब, जिनको कैलकाटा भेज दिया गया था कि नवाब साहब आप जाके कैलकाटा में रहिए, तो उन्होंने वहां पे मतिया बुर्ज करके एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई, लखनऊ जैसी खूबसूरत जगह, जहां पर एक जगह थी जिसके ऊपर 1975 तक, इस जगह पे 1975 तक एक यूनियन जैक लहरा रहा था। वो तो फिर वहां जाके कोई गया, भाई साहब क्या कर रहे हैं? अब इंडिया आजाद हो गया, you cannot have another country's flag on the Indian land, and that too on our property. No, not that. 1975 was the last when the Union Jack stopped fluttering in this country, and that's when we actually could say we were out of the Union Jack. हमने यूनियन जैक को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया। So जैसा कि महात्मा गांधी कहते हैं, a flag is necessity for all nations. Millions have died for it. It is no doubt a kind of idolatry which would be a sin to destroy. A sin to destroy. Bachcho, ladies and gentlemen, that's very, very important for all of us to know from Mahatma Gandhi. When this comes to you, you should always salute. You should always respect the kind of effort, the hard work our people have done for this flag. इसीलिए आपको 2002 के इस कोड ऑफ कंडक्ट को जरूर देखना चाहिए। This is a downloadable file. You can see this. It has a lot of rules. अच्छा बताओ, इसमें से कुछ गड़बड़ लग रहा है? Is it both okay? Are they right? Are they not? Are they both correct? Yes or no? No. So what's wrong?
No, we can hang it vertically, but that's the way it is. So the orange always has to be on this side. That's what this document will tell you. It's a 26-page document. आप सब अपना एक ग्रुप बनाना और इसका एक co-reading करना सब मिलके. आरिमा तुम कुछ एक पेज पढ़ के आना और गौनव तुम कुछ पढ़ के आना, कश तुम कुछ और पढ़ के आना, सब एक दूसरे को बताना और बहुत मजा आएगा. ठीक है? So that is one. और हाँ, yes, size. भाई फ्लैग का एक डिफाइंड साइज है. इस रूल बुक के हिसाब से लिखा है. जैसा होता है ना स्कूल में कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये होगा, तुम्हारी कॉपी ऐसे लिखेगी, वैसे ही झंडे का भी साइज डिफाइंड है. सो मच सो कि कौन कौन किस झंडे का साइज यूज कर सकता है ये भी डिफाइंड है. On a VVIP vehicle, when they are using it, this is the size. If it is on a vehicle and that too on the left hand side, it has to be this size. If it is on a table, जो कि मैम के पास रखा है, that's the size. That's what you can use. और जब हम कभी दुखी होते हैं तो हम अपने फ्लैग को हाफ मास्ट करते हैं, right? Is it okay? Do you all know this? Why do we bring it to half? Why do we bring it half pole? Yeah, 2/3, correct. We bring it down. But एक ऐसी कंट्री है जो ये नहीं करती. कौन सी कंट्री है? Guess करो. ये आप लोग ढूंढोगे, मैं guess नहीं करवाऊंगा. Okay, you will have to do it. No, there is something that they do. Okay, और एक और फ्लैग है जो इंडिया ऐसा फ्लैग दिखता है, बस इसका चक्कर गोला बदल दो, गोला चेंज कर दो, गोल कर दो. इजराइल, नो 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 नो. मैंने अभी उस फ्लैग मैन की कहानी सुनाई थी, उसी के आसपास की देश है, उसी का नाम है. यस, निगर, एब्सोल्युटली, नाइजर, निगर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली फाइन. तो देखा, सिर्फ गोला बदल दिया, वो कहाँ इंडिया और कहाँ अफ्रीका में वाली कंट्री, बट द फ्लैग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट? सो दैट्स द स्टोरीज अबाउट फ्लैग्स. I am so thankful that you could keep on listening. I hope you did enjoy and respect the flag. Thank you. Any questions? You can ask many questions. I can tell you. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. कोई एक ऐसा, साइना जी, एक क्वेश्चन आपके लिए भी है. क्या फ्लैग सिर्फ रेक्टेंगुलर हो सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. Can flags always be rectangular? So अगर फिर क्या साइज हो सकता है? बताइए बताइए. और सोचिए. सब नो 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 बोल रहे हैं. स्विस का स्क्वायर. अच्छा चलो, थोड़ा स्क्वायर हो गया. हाँ, कार्तिक बिल्कुल ठीक. नेपाल का तो yes, they can be a yes. और वो भी इंडिया से रिलेटेड है. सवाई, you will have to go back. Yes. तो सवाई रूल, हम कहते हैं ना, तुम तो यार सवाई हो. So everything is connected. Yes, yes. Yes, कोने दो कोने मिला रहे, triangles. Any questions? I'm happy to answer anything that people would like to share. But I'm really thankful, Saina ji, Dr. Bedi, that I'm here today and we could celebrate the birthday today. You've opened up a different world today for us, and there is so much to observe, think, absorb, learn. और वो बहुत सुंदर बात है. Millions have died for our flag. वो याद रखना बहुत जरूरी है. Correct. And the way you've narrated, the children were all there. The concentration was all there. This is, thank you. And और अगर कोई स्कूल प्रिंसिपल है तो मुझे बुला ले, मैं टीचर बनने को तैयार हूँ. I am ready to be a geography history teacher. I'm okay. We're going to meet them now next month with another very interesting topic. ऐसे ही सेशन करेंगे. अगले महीने के लिए क्या सोच रहे हैं हम? Ask the children. बच्चे बताएंगे वो क्या पढ़ के आना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं. उनके मन में है कुछ जो आप और मेरी बात हो रही थी. ये कह रहे हैं part 2. कुछ बच्चे कह रहे हैं part 2. Yes, there are so many flags. Actually, इसका part 2, part 3, part 4, part 5, part 10 ये आप लोग करोगे. You all will have to prepare, send notes, tell them that you are reading about this flag. I will be able to help you with a couple of book names that I have been reading. I'll do that. और ये लोटस वाला क्वेश्चन पक्का ढूंढ के लाना है. Talking Languages, about how they were developed. That's a great subject. Anji, they've given us that. Then food of our country. What you were thinking, no? Food of our country. Stories of our cities. दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों है भाई? नासिक का नाम नासिक क्यों है? We can do that.
Names of the cities. Kanishk is asking, there's a question about moon. Okay. No, that's not the UK flag. Perfect. The Sikona flag though is very blessed. It's a symbol of it's so very blessed. Yes. And there are actually thousands of them. If I can actually add one very interesting one. एक बार मैकडोनल्ड्स ने बहुत बड़ा फाइन पे किया था जब एक फ्लैग की रेस्पेक्ट नहीं करी थी उन्हें. ये भी आप ढूंढ सकते हैं. आप एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ढूंढ सकते हैं कि शिरीन और फरहाद भी है एक फ्लैग के ऊपर. पता है शिरीन और फरहाद, लव स्टोरी ऑफ शिरीन फरहाद, they're also there. You can search. And I can think of some other very interesting ones. I will share. There's many of such stories. We can. A lot of our blessed spiritual flags of prayer are also Sikona. Yes. Yes. I think anyone who wishes to speak, children, they can open their mic. Any child wants to say something? Sir, I wanted to ask. 1 minute, Bachi. 1 minute. Raise your hand. I can see you. I need to see you. You all are switching. Who wants to ask the question? One by one. Yes. Yes. So, Ikshitu, yes. मैम जी जी मैम जी. मैम हम एक वो पोएम सुनाते हैं इसके बारे में. क्या सुनाना है? यस दीदी. आपके पास बच्चे क्वेश्चन है तो वो अभी लेंगे. अभी लेंगे. हाँ, मैम क्वेश्चन. हाँ, कनिष्क पूछो बच्चे. और बाकी बच्चे म्यूट करो. कनिष्क will ask the question. Ma'am, I also want to ओके ask मैम. a मैम मेरे पास 3 क्वेश्चन है कि वो मून पे सर ने फोटो नहीं दिखाई थी जिसमें वो झंडा रख रहे थे मून पे पहली बार. तो मैम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कैमरा लेके कैसे गए, फोटो कैसे खींच ली उन्होंने. दूसरा क्वेश्चन वो वहाँ फोटो लेके ही क्यों गए, कैमरा किस लिए चाहिए था. और तीसरा क्वेश्चन नील आर्मस्ट्रांग ने पहले क्यों नहीं रखा फ्लैग, क्यों उसने नहीं गाड़ा, दूसरे ने क्यों करा. कनिष्क, मेरा मन कर रहा है मैं आगे तुम्हें गालना ऐसे खच कर दूं. बिल्कुल मजेदार सवाल पूछे तुमने, 3 इतने जबरदस्त. कैमरा क्यों लेके गए? म्यूट योर माइक्स बच्चों, म्यूट योर माइक्स. मोहित अंकल को बोलने तो पहले. देखो भाई कनिष्क, इतना बड़ा रॉकेट लेगा तो इतना बड़ा छोटा सा कैमरा ले रहे यार, पॉकेट में डाल के खींच ली फोटो. अब तुम पूछो नील आर्मस्ट्रांग ने क्यों खींची यार? पहले उन्होंने पैर रखा ना वहां पे, वो अपना टहल रहे थे, वो सेट होते हैं. पैर रख लिया, सारे काम मैं करूंगा तो दूसरे कौन करेगा. That's a brilliant answer. अच्छा सर, उनको मन कर गया होगा कि भाई तू कर ले, मैंने अपना काम कर लिया. मैं फर्स्ट लैंड करने वाला हो गया, तू फर्स्ट झंडा लगाने वाला हो जाए. बस यही लॉजिक मुझे. नहीं तो बात आ जाएगी मैं नहीं करा, तूने कुछ नहीं करा, तू बस देखने आया. Your mics, children, mute your mics one by one. Otherwise, we'll have to stop the question answer session. Mute your I think mic. everyone can raise their hand and ma'am. And I'm going to ask you, the other children, mute mic. Hanji. They can raise their hand. मैं क्वेश्चन पे पूछ रहा हूँ, मेरी हैंड रेज है. कौन से वाले हो तुम? खाओ. सारे बच्चे हैं और सब हिल रहे हैं ऐसे टिक 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 टिक. हाँ, hand raise कहाँ पर है? I think गगनप्रीत कौर, पहले आप अपना सवाल पूछो. ऐसे कर सकते हैं. Run it like this. Bhavya also wants to ask. Bhavya, you ask, beta. You wanted to ask? I think open करना पड़ेगा. Yes, Bhavya, open है आपका mic. Your mic, बच्चे. Sir, why Nepal's flag is triangular while others almost prefer rectangular flag for their country? देखो इसका जवाब मैंने बिल्कुल ढूंढ के पढ़ा था. It is related to our religion, which is Hinduism. पहले तो आपको जानना पड़ेगा. एंड मेरा सजेशन एक बार आपको ढूंढना. आज गूगल का बर्थडे है ना यार, तो वी शुड सेलिब्रेट गूगल.
थोड़ा तो गूगल करो, मिल जाएगा. नहीं मिले तो जस्ट डू लेट मी नो, आई विल लेट यू नो. बट द रीजन इज बिकॉज ऑफ रिलीजन. और मैंने आपको हिंट भी दिया, सवाई. और आप देखो उससे पहले कभी आप देखना रामायण सीरियल या महाभारत सीरियल देखते तो होता ना वो जो रथ होता था उसके ऊपर एक ध्वज लहरा रहा होता था, वो कैसा होता था? ट्रायंगुलर, राइट? और एक के ऊपर एक होता था. देखा, ये तो पुराने चीज से पता लग जाता है. तो आज भी हमारी पूजा के फ्लैग्स आर फ्लैग्स ऑफ अभी strength. मंदिरों पे यस, करेक्ट. आज भी ऐसे ही. That is what was coming to my mind, but for me that's a spiritual symbol. So, but yes, Bhavya. Okay. Adhyansh, yes. Other all children mute. किससे सवाल? Adhyansh will ask. Anji, अध्यांश, ओके. Adhyansh ask. Yes, sir. I want to say that the Tibetan flag are also triangle. कौन से वाले फ्लैग भाई? In Sikkim, like there is a triangle flag, na? In red, blue, that colors. So why it is triangle and it follows the same color pattern every time? ये अगर वहाँ का लोकल फ्लैग है, मुझे भी नहीं पता अध्यांश, मैं भी ढूंढूंगा, मैं लिख लेता हूँ. ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने, और मुझे भी नहीं पता. बट सिक्किम अगर तुम रियलाइज करो तो it was added to our country later on. It was separate state, right? So I will have to go and see their state because now it is part of the country. So there's they use the same flag, but I'll check. ये अच्छा सवाल है, मुझको भी नहीं पता. Okay, sir. I think we can take one or two more questions. Yeah. Any other question? 6:15. 6:15 we'll close the program and then see you again next month. का. Hanji, yes. Subhagya, yes, beta. So Bhagya, yes, here it is. Yeah. All the other bachas mute mic. Yes, Subhagya. Subhagya. Yes. Beta, unmute your mic, Subhagya. Yes, ma'am. Sir, I want to ask that, like there are in India, each state has its own flag. So it shows that there is no unity that time more. मुझे तो समझ नहीं आया, तुम चैट पे लिखोगे क्या? Okay, sir. लिखो लिखो, फिर हम बात करते हैं. Children mute. Samdrita, yes, beta. Yes, ma'am. So my question is, how do we remember all the maps? How do we remember all the maps? Entire map. How will they remember all of ना this? तुम ना मेरे जैसा एक मैप लगा लो अपने रूम में भी, जो तुमने पीछे बढ़िया बढ़िया ड्राइंग्स लगाई ना, वहां पे एक मैप लगा लो, वर्ल्ड मैप. आजकल देखना बहुत जगहों में मिल जाता है. फिर मैं क्या करता हूँ ना, मैं डेली सुबह उठता हूँ, ठीक है, तो पहले तो मैं बुक पढ़ता हूँ, और उसके बाद में ऐसे ही जब खाली खड़ा होता हूँ ना, तो मैं सिर्फ वर्ल्ड मैप देख रहा होता हूँ, और मैं सोचता हूँ अरे बल्किनो फासो ये कौन सी जगह है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं. और फिर मैं उसको थोड़ा सर्च करता हूँ, थोड़ा गूगल करता हूँ, फिर अपनी कुछ और किताबों में पढ़ता हूँ, मेरे पास कुछ एटलसेस हैं. सो ऐसे वो धीमे धीमे याद हो जाता है. फिर और ऐसे तुम्हारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं भी किस्से सुनाता हूँ, वो मुझे नए किस्से सुनाते हैं. जैसे आज मुझे सिक्किम के बारे में पता लग गया, मैं सिक्किम के बारे में ढूंढूंगा आज रात को. So that's how you will remember everything. Okay, sir. Thank you. इस सिस्टम को शौक, हाँ शौक भी है ना, उनको लगन है. इसको हम पहले कहते थे map puzzle, great way to learn. Yes, that's a good way. Okay, sir. Thank you, sir. गगन पूछो बेटा. हाँ जी गगन you can ask बच्चे. गगन unmute. Ma'am, I wanted to ask why all the cities came in India. The world is a big place. Why didn't they get separated? Why are all they combined in India? Why Britishers came to India? Yes, sir. कौन सी क्लास में हो गगन, पहले तो तुम्हें बताओ. 4th. अरे बाबा रे, ये तो बड़ा डेंजरस है. तुम पता है क्या करना, तुम इंडिया के बारे में जो पहले था ना, उसके बारे में पढ़ना कि इंडिया कितना रिच था. और जब कोई बहुत रिच होता है और जिसके पास कुछ नहीं होता तो वो कहता है चलो मैं इससे जाके ले लेता हूँ. So that's why India was invaded again and again and again, because we had all the great things. We still have great things. We have people like you, we have Gagan, and we have so many friends. So that's why we are rich, and we were always rich. हम इंडिया को सोने की चिड़िया, you know,
Beta, India is a very rich land. It had all the resources, the minerals, Correct. everything, the cranes. The metals. Okay, ma'am. So Okay. it was to gain that power. And we held our own. We created our own identity. In time, we created our own identity. Any other, Mitho Bacha? Okay, now we are going to say bye-bye and we are going to say see you soon. No, one. Lalit, yes. Ask bache. Lalit. अब इनका their minds are running. They want to ask you all sorts of things. Mind, I can see it now. Now they've started. अब वो so let's give. सोच लिया उसने, सोच लिया. हाँ, और सोच रहे हैं. ललित पूछना है बच्चे. भाई कौन है ललित आपका? It's a very rare program for them. I can't tell you Sir, how. I have sent my question in the chat box. हाँ, send बच्चे. Ma'am, ललित आपको पूछना है कुछ बेटा? हाँ. ma'am, are you listening me? Yes, Lalit, we can. Ma'am, हाँ जी. पूछो क्वेश्चन. ललित आवाज आ रही है. ललित हम तुम्हें सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं. तुम अपना सवाल बाआवाज बुलंद होके पूछो. एक बारी मुझे देखना क्या क्वेश्चन आया है. सर, आई एम सेइंग दैट बिफोर इन इंडिया. सौभाग्य, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूनाइटेड होने का मतलब ये नहीं था कि हमें एक कोई कॉमन गवर्नमेंट हमें रूल करती थी. हमारा जो कल्चर था वही हमें रूल करता था. तो अगर आप देखो कि हम अलग अलग स्टेट्स थे. Ma'am, I am not be able to hear you. कितनी देर होगी मम्मी? तो पूछना है क्वेश्चन पहले. बाकी बच्चे म्यूट करो. किसको पूछना है क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन. अब लास्ट क्वेश्चन. Saubhag, did you get your answer? Did you get your answer? So you were not governed by one government, but हम अलग अलग स्टेट्स थे. इसका मतलब ये नहीं कि हम यूनाइटेड नहीं थे, बट हम सब अलग अलग तरीके से गवर्न होते थे. बट हमारा जो कल्चर, हमारा फेथ, जो रिलीजन था, वो सेम. Yes. Last question, Lalit. Yes, okay, one more question. Lalit. Ma'am, I am not be able to hear you. पूछो आप क्वेश्चन पूछ. तुम बोलो, हम तुम्हें सुन रहे हैं. तुम बोलो. Can you ask the question? पूछो. What, ma'am? पूछो. भूल गया. अभी धीरे भूल गया. कोई बच्चा नीचे लिखो चैट बॉक्स में. आस्क क्वेश्चन. पूछो. Mohit, this is so much of joy and love. This is togetherness. कोई बात नहीं. मैं तो कह रहा हूँ कोई स्कूल है तो मैं आ जाऊँ, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने. आप और मैं ऐसे अभी 1 घंटा आराम से बैठ सकते हैं इनके साथ, और ये भी बैठेंगे. I'm enjoying. Yes. I think this is a lovely birthday celebration. We Yes, are being blessed today to have such lovely children with us. It's so wonderful. You and I can go on and on. Okay, now we are closing the questions session. We're going to see you next month with another interesting topic. अब आपको पता चल गया है कि हमने क्या करना है. So अब हम आपको पहले बता देंगे हमारा टॉपिक क्या है. आप अपनी रीडिंग करके आओ. अब अगर हमने आज के सेशन को 100% प्रोडक्टिव बनाना है, तो थोड़ा सा इस सेशन के बारे में रिफ्लेक्ट करना, सोचना आज क्या क्या डिस्कस हुआ. एंड अगर ये ट्रिगर करा, आपकी जिज्ञासा को बढ़ाया है आज, स्टार्ट रीडिंग. बट यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू डू. यू हैव टू एंजॉय रीडिंग. हाँ, ये यू कांट फोर्स दिस. वी हैव लेफ्ट अ लिटिल, हमने इनिशिएट करा है, अब आप रीड करो. हमारे आज के प्रोग्राम का एक और मकसद है कि आपको इनिशिएट करें टुवर्ड्स रीडिंग, टुवर्ड्स नोइंग मोर, वांटिंग मोर. ये है मकसद. सो ट्राई कोशिश करो. एंड वी सी यू सून नेक्स्ट मंथ. डेट हम आपको बताएंगे. Mummy, a few blessed words from you, and then we'll ask Mohit also to say. A big thank you to Mohit. Big thank you to Mohit
And big thank you to all our children who've connected. And a big thank you to demonstrative learning. Big thank you to Team Saina and Shakib and brilliant. all behind me. Big thank you to all of you. Now let's come up with an exciting subject again for next month. We can मोहित, आप propose, कुछ कहेंगे? Mohit, we can propose 2-3 subjects in our student Certainly, group ma'am. and see Certainly, what they ma'am. want. Certainly, ma'am. Let's give it to them in this manner, which Yes. internalizes their learning for them. Mummy, they've said food, language, name of cities. So Mohit can pick one so that he has, he'll also get enough time, because see such lovely slides he has prepared for the children. That's very, very brilliant. Children, you must have so We much of must put gratitude. it on the YouTube. Please make a proper so that it becomes a lesson learning for children. Make a YouTube session and we'll put it on our demonstrative learning. Mohit? Sure, ma'am. आपने Lovely. देखा है उन्होंने आपके लिए कितनी तैयारी करी है, एक एक स्लाइड बनाया बच्चों. Thank you. So आपको everybody दिखाने saying के thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. I'm really honored. It's a monthly session. Maybe we can keep it And every thanks to time everyone for joining 27th. today. Thank you, It's Saina ji. continuity of the date. Yes. 27th Yes. September, Perfect. come what may, whatever. Here, one day, here and there, around his date of birth. So which means basically the mentorship program goes on. Yes. Every time month 27th. Right? Date bhi nahi bhulegi kisi ko phir. True. Right? Right, Guchu? Saina? Yes, mommy. Thank you. Thank you. Mohit, any few आपके कुछ words before we No, leave? I'm absorbing. I'm so blessed. There were so many children, and I think the parents will also understand history, geography. मजेदार होती है पढ़ना. नेक्स्ट टाइम बच्चों Really की great. मम्मी डैडी भी बैठ जाएंगे, आप देखना. उनके भाई बहन भी Oh, बैठ brilliant. मजा आ जाएगा. हम कोशिश करेंगे to get that other program. We can have more children then. Today we had a limitation of numbers. Next time we can, वो screen पे उतने ही आ पा रहे थे. We'll get the other. No, whatever technology we can bring more children, let's use that Sure. panel technology. We'll do that. Benefit Sure. more. Right. Thank you, आप Mohit. सब बच्चों को मोहित, thank you so much. चलो अब सब जाके कुलचा खाना और हैदराबाद को याद करना, बिरयानी भी खाना, ठीक है? झंडा ऊंचा रहे हमारा. जय जय भारत, जय हिंद. जय हिंद, जय हिंद. और आप सब बच्चों को बहुत प्यार. जय धारी माँ. अगले महीने जल्दी मिलेंगे आपको. Bye. And see you on Friday. Bye. Bye-bye. See you on Friday. Now see you all on Friday. Bye-bye. Jai Dhari Ma. Thank you. Saina, we'll meet today, not follow up with this. We'll meet another time. I have some other meeting which has come up. Okay, Saina? Dhari Ma बच्चों, खुश रहो. आप सब लीव करो. I am sitting right here. जब आप सब लीव करोगे, then Saina aunty will go. Saina ma'am will go. आप सब लीव करो पहले. Bye. Take care. Lots of love. Dhari Ma, खुश रहो.